جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام العلي عليه السلام: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعينهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. صلى الله عليه اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری روح ہے، جس نے کفاف ہمیں فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے ہم آپ لوگوں سے معذرت چاہیں گے کہ اس دوران محرم اور دوران مجلس اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو یا کسی جملے کی وجہ سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہمیں معاف کیجیے گا، اور شکر گزار آپ کے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس عظیم عبادت میں آنے کا موقع فراہم کیا. امیر کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں: العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک دنیا باقی ہے علماء باقی رہیں گے. اعینہم مفقودہ، وہ تمہارے نگاہوں سے اوجھل تو ہو جائیں گے. وامثالہم فی القلوب موجودہ، لیکن ان کی مثالیں تمہارے دلوں میں زندہ رہیں گی. امام کا فرمان ہے، اور امام سے بڑا کوئی بھی کائنات میں حکیم نہیں ہوتا ہے، اور حکیم کی باتیں کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی ہیں. مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک سیدھا راستہ ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں. اگر ہم تک آنا چاہ رہے ہو تو پہلے تم علماء کا احترام کرنا سیکھو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ منبر پہ وہی عالم آئے جو ہمارے حساب سے بیان جاری کرے، جو ہم کہیں وہی بولے، جو ہم کہیں وہی وہ بولے، اور جو ہم چاہیں سامعین وہی سنیں. تو یاد رکھیں، عالم صرف خدا اور رسول اور امام کے علاوہ کسی کے غلام نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غلامی وہاں سے کی ہے جہاں پہ ابو ذر و مقداد نے غلامی کی ہے. اور یاد رکھیں، جو بھی حامل شریعت ہوتا ہے بہرحال اس کا احترام واجب ہوتا ہے. اور بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ علماء کا احترام در حقیقت امام وقت کا احترام ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم دولت میں بہت زیادہ ہیں، یہ الگ سی بات ہے کہ ہم ثروت کے لحاظ سے بہت بلند ہیں، یہ الگ بات ہے کہ زمینی لحاظ سے ہمارے قریے میں ہم سے زیادہ زمین کا مالک کوئی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ پہچاننے والے ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے. ہم جس راستے سے گزر جاتے ہیں لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں. غور کیجئے، یہ سلام آپ کی دولت کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر دولت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یاد رکھیں دنیا میں آپ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے. اگر اخلاق کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کائنات میں آپ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علماء کا احترام واجب ہے. آج ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہمیں مکتب
में आने का सलीका कौन सिखा रहा है? हमारे घर का एक आलिम है जिसे हम कोई अहमियत नहीं देते, जिसे हम कोई वक़ात नहीं देते, जिसकी हैसियत का हम कोई अंदाज़ा नहीं लगाते। बस ये हम ये समझते हैं जैसे हम वैसे वो, जैसे हम चल रहे हैं वैसे वो चल रहे हैं। कभी ख्याल कीजिए, गौर कीजिए कि जब इंसान इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, रवायत बताती है फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। तो बताएं वो हमसे कैसे बराबर हो गया? आप कहते हैं कि आलिम हमारे जैसा, आप कहते हैं कि आलिम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही है, जैसा हम खा रहे हैं वैसे ही है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहता है। लेकिन ये हदीस तो बता रही है आलिम हमसे कहीं ज्यादा बुलंद है। क्या हमारे पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं? नहीं बिछा रहे हैं। क्या हमारे लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उस वक्त तक जब तक हमारे अमाल वैसे ना हो जाए जैसे खुदा चाह रहा है, जैसे इमाम चाह रहे हैं, जैसे अहले बैत चाह रहे हैं, तो बताएं कैसे आलिम हमसे हमारे बराबर हो जाएगा? आलिम का मर्तबा समझना है तो अमीर कायनात से समझिए, आलिम का मर्तबा समझना है तो मौलाए कायनात से समझिए। जब जनाबे हसनैन अलैहिस्सलाम को दर्स देने के लिए आलिम आया था, जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़वाई थी, जबकि ये बिस्मिल्लाह के मोहताज नहीं है, बिस्मिल्लाह इनका मोहताज है। ये कुरान के मोहताज नहीं है, कुरान इनका मोहताज है। ये हदीस के मोहताज नहीं है, हदीस इनकी मोहताज है। ये इनके मोहताज नहीं है, इल्म इनका मोहताज है। लेकिन इमाम बताना चाह रहे हैं कि देखो आलिम का मर्तबा क्या होता है। इमामत के रहते हुए भी आलिम का एहतराम कैसे किया जाता है, आलिम का मर्तबा क्या होता है। जब उस आलिम ने बिस्मिल्लाह पढ़वाया है, मौला ने अशरफियां दे के कहा था ये लो रखो और याद रखो अली ने वो चीज तुम्हें नहीं दी जो तुम्हारा हक है। तुम्हारा तो हक ये है कि अली तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा ले। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मौला के सामने आलिम है। और आज हम क्या कहते हैं? आज हमारा नजरिया क्या है? मौलवी छोटी मजलिस पढ़ ले तो छोटा मौलाना, 1 घंटे की पढ़ ले तो 20 का, 2 घंटे खींच ले जाए तो उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। याद रखें वक्त लेना कमाल नहीं होता है, कम वक्त में करबला समझा देना ज्यादा वक्त लेना कमाल नहीं होता है, एक लम्हे में किसी को हुल बना देना। ऐसा नहीं है। अपने नजरिए को बदलिए, अपने नजरिए से शरीयत समझिएगा। ना शरीयत समझ में आएगी, ना साहिब शरीयत समझ में आने वाले हैं। अहले बैत के इल्म से शरीयत समझिएगा, इमाम भी समझ में आएंगे, हुज्जत खुदा भी समझ में आएगी और माँ भी समझ में आएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद। और अगर गौर किया जाए तो ये जो आज़ादारी हमारे दरमियान है ये उम्मा की कुर्बानी का नतीजा है। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं तब जाके ये आज़ादारी हम तक आसानी से पहुंच गई, इसलिए अहमियत का अंदाजा नहीं है। अंदाजा किसी चीज का उस वक्त होता है जब चीज हमसे जुदा हो जाए या वो बहुत दूर चली जाए, वो मिलने वाली नहीं है। आज हमारे दरमियान है इसलिए हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, जैसा चाहते हैं बोलते रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ये बताओ तुमने फर्श अज़हरी किया क्या है। दूसरों के बोलने से पहले तुम ये बताओ तुमने कितने तबद्दुल के इंतजाम कर दिए हैं, तुमने कितने लोगों को फर्श अज़हर पे बुला दिया है, तुमने कितने उलमा का एहतराम किया। याद रखें इस दौर में, इस पुराशोक जमाने में अगर उलमा हमारे दरमियान मौजूद हैं तो ऐसा समझिए जैसे आसमान पे चमकते हुए सितारे हैं। वो सितारे ऐसे हैं कि अगर वो बोलिए भी बैठ जाते हैं तो दुश्मनों को ऐसा महसूस होता है एक लश्कर बैठा हुआ है। और याद रखें आज अगर ये हमारे दरमियान सिस्तानी ना होते, खामेनाई ना होते, वही खुरासानी ना होते, रफसंजानी ना होते और दीगर ना उलमा ना होते तो ना हम तक, ना इमाम तक हमें कोई पहुंचा सकता था, ना खुदा की मारिफत
मुलाकात की सोची, वादियो सलाम गए, सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर गए, सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। वादिये मकबूल चले गए, सलाम किया, फौरन जवाब दिया, अल्लाह अकबर। ये कालिमे थी अबू ताहिर। हम आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे दरमियान अगर ऐसा हो जाए तो क्या कैसा रिएक्शन होगा। ये कालिमे थी वादिये मकबूल में, उनसे पूछ लिया, बाबा आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ आए। एक, फलां साहब का कर्ज हमारे ज़िम्मे है, कुछ देर हम उसे अदा करेंगे। दूसरा ये है कि फलां मकाम पे हम जा रहे थे, एक आलिम का गुजर हो रहा था, बेइतनाई में होता ना, अक्सर जल्दबाजी में हम गुजर जाते हैं, ये नहीं देखते कि कौन है। बेइतनाई में कोई ख्याल नहीं था, उन आलिम से पहले वहाँ के निकल गए। खुदा को ये अदा नागवार गुजर गई, सिर्फ आलिम से आगे निकल गए। अब आलिम से अगर ज़बान दराज़ी क्या, अल्लाह अकबर। तो जाके उनसे माफ़ी मांग लेना। गए, उनका कर्ज अदा किया, उन आलिम से जाके वाक़या बयान किया, तो उन्होंने कहा मैंने माफ़ किया, खुदा माफ़ करे। फिर दूसरे रोज़ वादुस्सलाम पहुँचे, सलाम किया है, फ़ौरन जवाब आया है। तो मालूम हुआ ना कि उलमा का एहतराम बेइतनाई में भी ना छोड़िएगा। रही बात ख्याल में, तो जितना मुमकिन हो, इसलिए कि हमारे दरमियान जो आलिम हैं, हमारे दरमियान जो उलमा रहते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, हमें उस लायक बनाते हैं कि फर्शा पे हम आए, हमें उस लायक बनाते हैं कि नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाए, हमें उस लायक बनाते हैं कि अहादीस को समझा जाए, हमें उस लायक बनाते हैं कि तफसीर को समझा जाए, हमें उस लायक बनाते हैं कि बुजुर्गों का एहतराम किया जाए, हमें उस लायक बनाते हैं कि बच्चों को किस तरह एहतराम सिखाया जाए, हमें उस लायक बनाते हैं कि घर का माहौल कैसा बनाया जाए, हमें उस लायक बनाते हैं। याद रखें, अगर हमारे दरमियान आलिम ना हो तो इमाम से मुलाकात ना हो, और जब इमाम से मुलाकात ना होगी तो ना हमें दीन समझ में आएगा, ना तबलीग समझ में आएगी, ना शरीयत समझ में आएगी, ना करबला समझ में आएगी, ना कुर्बानी इमाम हुसैन समझ में आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कोशिश कीजिए किसी के भी आप एहतराम करना ना छोड़िए, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो। कुदरत ने हक नहीं दिया है, रसूल की हदीस है, अकरम ज़ैफ वलौ काना काफिरा, मेहमान का इकराम करो, ताज़ीम करो, अगरचे वो काफिरी क्यों ना हो, इसलिए कि तुम्हें दीन पहुंचाना है, तुम्हें शरीयत बदलाना है। हमारा एहतराम तो अपनों में नहीं, हम गैरों की एहतराम की बात कैसे करेंगे। घर में अपने वालिदैन का एहतराम नहीं है, जबकि शरीयत कहती है कि जब भी घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करो। हम में से कितने हैं जो घर में दाखिल होकर सलाम करते हैं। जिस बाप ने उंगलियां पकड़ के हमें चलना सिखाया है, आज हमारे पास चंद दौलत हो गई तो उसी बात पे उंगली उठा रही। अल्लाह अकबर। वालिदैन की दाद हर हाल में वाजिब है। छठे इमाम जाफर आए थे ना, ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन, कि जब वालिदैन अगर तुमसे नाराज हो जाएं तो उनके जवाब में उफ तक ना करो। तो मौला से पूछा गया था, मौला इसका मतलब क्या है? तो इमाम ने कहा था, अगर उफ से हल्का लफ्ज भी होता तो खुदा कुरान में उसे जगह देता। लफ्ज उफ जब अच्छा होता है ना कि मानो कुछ कह दिया उफ, इसके लिए भी मना किया गया है। इसलिए कि अगर हमें 70 साल 100 साल 200 साल की भी जिंदगी मिल जाए और लगातार हम इबादत करते रहे तो माँ के उस कर्ज को अदा नहीं कर सकते जिस दिन उसने अपने शिकम में हमारा बोझ संभाला था। 9 महीने बोझ संभालना आसान नहीं होता है। आप 1 घंटे तक बोझ संभाल के दिखा दीजिए। याद रखें, माँ की पैरवी हर हाल में वाजिब है। एक वाक़या मिलता है ईरान का, एक शोहदा शहीद था, हर शब जुमा माँ उसकी कब्र पे ज़ियारत के लिए जाती थी। एक शब ख्वाब में आके माँ से कहता, अम्मा आप शब जुमा ना आया करिए, इसलिए जब आप शब जुमा आती हैं हम इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाया करते हैं। जब आप हमारी कब्र पे आ जाती हैं तो इमाम कहते हैं, जाओ तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है, पहले उनसे मुलाकात करो फिर हमारे पास आओ। इमाम बताना चाह रहे कि देखो, इस दुनिया में अगर तुम्हारी इज्जत है तो तुम्हारे वालिदैन की वजह से है, अगर तुम्हारी वक़्त है तुम्हारे वालिदैन की वजह से है। तुम पहचाने जा रहे हो अपने वालिदैन की वजह से, तुम जाने जा रहे हो अपने वालिदैन की वजह से, तुम बोल रहे हो अपने वालिदैन की वजह से, तुम देख रहे हो अपने वालिदैन की वजह से। याद रखें, अगर
हदीस, रवायत, शरीयत, इमाम से मिलाने का कोई जरिया है तो हमारे वालिदैन हैं। इनका एहतराम हर हाल में कीजिए, जरूरी है। उलमा का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम। जहाँ शीयत होगी वहाँ एहतराम होगा, जहाँ एहतराम नहीं वहाँ कोई शीयत नहीं। सवाल पढ़े मोहम्मद वाला सब होता है ऐसा। कोशिश कीजिए, सिर्फ कह लेने से शिया काफी नहीं होते हैं, अमल करके बताइए, वरना जनाब नूह का बेटा भी मर हुआ है। किस चीज के हम घमंड है हमारे अंदर? इमाम कह रहे हैं तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है, किस बात का घमंड कर रहे हो? अगर तुम गौर करो तो अपने पेट में वरासत लेके टहल रहे हो, घमंड किस बात का है तुम्हें? और इमाम कह रहे हैं तुम मायूस क्यों होते हो? खुदा ने तुम्हारे अंदर कायनात अकबर समेट के रखी है। एक तरफ इमाम कह रहे हैं घमंड ना करो, एक तरफ इमाम कह रहे हैं कायनात अकबर है, मायूस ना होना। इमाम बताना चाह रहे हैं कि देखो, घमंड करो तो अपने शिकम को देख लो, और अगर फख्र महसूस करो कि हम ऐसे लोगों के मानने वाले हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से है, तो अपने अंदर कायनात अकबर को महसूस करो। आप इसे मासूमीन है। कोशिश कीजिए, वक्त मिले तो इन अक़वाल को पहचानिए। आप बताइए, हम यकीन मानिए, अगर हम सर्वे करें 50% ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें अभी कुरान से मानेंगे। हम अपने यहाँ जहाँ जहाँ हम गए हैं देखा है, अक्सर होता है। तवज्जो दीजिए, शरीयत क्या है? अल्लाह के राह फिर शरीयत में ज़बरदस्ती भी नहीं है कि शरीयत करी नहीं तुम्हें यही करना है। अगर दाखिल हो गए हैं शरीयत में तो मानना पड़ेगा। जिस देश में रहते हैं वहाँ का कानून फॉलो करना होगा। उसी तरह जिस जगह जिस भी शरीयत को मान रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको, तब जाके आप पहचाने जाइएगा। वाकई दीन इस्लाम से बेहतर कोई दीन भी नहीं है, जिसने हर कदम पे हमें इशारा दिया है कि देखो उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, रहना कैसे है, सांस कैसे लेना है, बोलना किस अंदाज से है, देखना कैसे है, सुनना कैसे है। याद रखें, जब हम शरीयत को फॉलो करेंगे, जब भी देखेंगे तो हलाल चीज़ देखेंगे, जब भी खाएंगे हलाल रिज़्क़ खाएंगे, जब भी सुनेंगे अच्छी बातें सुनेंगे, जब भी कहीं जाएंगे नेक काम के लिए जाएंगे, जब भी हमारा हाथ उठेगा अच्छे काम के लिए उठेगा, जब भी हम बोलेंगे अच्छी बातें बोलेंगे। जब ये सारी चीजें जमा हो जाएंगी तब जाके इंसान अशरफुल मखलूकात बनेगा, तब जाके हम फरिश्तों से बुलंद होंगे, तब जाके लोग कहेंगे हाँ ये इमाम का चाहने वाला है, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था। यही सब वजह थी कि दाल में भी चढ़ के मीसम ने अली अली बोला था और जिंदगी में भी अली अली बोला था, वरना इतनी लालच दी गई थी उन्हें कि हमें वो लालच दे दी जाए। याद रखें, इतने पैसे देने की बात हुई थी कि कई नस्लें बैठ के खाए, लेकिन जिनके दिल में हकीकी मोहब्बत अहले बैत आ जाए उनके सामने दुनिया ठोकर होती है। मौला अली की तो बात दूर है, इनकी कनीज फिजा है, जब चाहे दीवार को सोना कर दे, जमीन ठोकर मार दे तो सोना उतर दे। उन्होंने 40 साल तक कुरान की ज़बान में बात करके बताया है कि देखो जब इनके घर की कनीज ऐसी है तो मालिका कैसी है। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले आलिम बने, कोशिश करें हद फील्ड में आए। शरीयत ने कभी ये नहीं कहा कि आप इंजीनियर ना बने, कभी ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर ना बने, बनिए ताकि शरीयत के लिहाज से लोगों की मदद कीजिए। सिर्फ दौलत से मदद करना मदद नहीं होती है, अखलाक भी मदद करता है। और किसी को सिर्फ मारना जुल्म नहीं होता है, ज़बान से भी मारना जुल्म होता है। कहते हैं ना तलवार का जख्म मिट जाता है लेकिन ज़बान का जख्म नहीं मिटता है। इसलिए मौला कायनात ने कहा कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छिपा हुआ है, बोलेगा तो पहचाना जाएगा। बोलिए ताकि पहचाने जाइए। अब जैसा बोलिएगा वैसी इज्जत मिलेगी, वैसे पहचाने जाइएगा। और याद रखें, जब इंसान की अक्ल कामिल होने लगती है तो वो कम बोलने लगता है, फिर वो समझता है कि बोलना कब है। वो एक शेर है ना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, यही अपनाइए। जब वक्त हो तब बोलिए, वक्त से पहले ना बोलिए, इसलिए कि वक्त से पहले बोलिएगा तो फिर मायूसी हाथ आएगी, शर्मिंदगी। मजाक में भी बोलिए लेकिन ऐसी चीजें ना बोलिए। इमाम का फरमान है कि मजाक की इंतहा फसाद है। और बरसात ऐसा होता है जब मजाक तजावुज़ कर जाता है तो बात लड़ाई झगड़े पे आ जाती है। अल्लाह का कौल है, कोई झुकला नहीं सकता है। मजाक भी करिए लेकिन झूठ ना बोलिए। अल्लाह
इसलिए कि झूठ जो है बहुत बड़ा गुनाह है। तो इंसान रसूल के पास आया, शराब पी, कहा या रसूलल्लाह हम क्या करें, शराब हम छोड़ना चाह रहे हैं। तो रसूल ने कहा बस कुछ मत कर, झूठ बोलना छोड़ दे। कहा ठीक है रसूलल्लाह, बड़ा है रास्ते से गुजर हुआ है, शराब खाना पड़ गया। वही है ना, जिसकी आदत पड़ जाए बहुत जल्दी नहीं छूटती। कहा चलो आज एक दफ़ा और पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। लेकिन उसने सोचा, रसूल ने कहा झूठ ना बोलना, जब हम जाएंगे लोग पूछ लेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, वहाँ से निकलेंगे जब पूछ लेंगे लोग तो झूठ बोलना पड़ेगा। रसूल का एक लफ्ज़ तमाम गुनाहों से बचा लेगा, झूठ ना बोलना। इसलिए कि कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए हज़ार झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठ गुनाह कबीरा में से है। गुनाह कबीरा वो गुनाह है जिनकी सज़ा नहीं है, माफ़ नहीं होने वाला है। खास इसलिए कि झूठ जब भी हम बोलेंगे वो किसी दूसरे से बोलेंगे, और हुकूकुल नास में किसी की हक तलफी जायज़ नहीं है। हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, हमने नमाज नहीं पढ़ी, खुदा जाने वो माफ़ करे ना करे, हमने रोज़े नहीं रखे, वो जाने माफ़ करे ना करे, हम हज पे नहीं गए इस्तिताअत होते हुए, वो जाने माफ़ करे ना करे, हमने खुम्स नहीं दिया, वो जाने माफ़ करे ना करे, हमने ज़कात नहीं अदा की, वो जाने माफ़ करे ना करे। लेकिन हमने हुकूकुन नास ज़र्रा बराबर भी पामाल कर दिया, किसी की दिल शिकनी कर दी, किसी का हक तल्फ कर लिया, खेत जोतते हुए किसी की मेड़ी थोड़ा सा दबा ली तो कब्र बहुत तेज़ दबाने वाली है। याद रखें, यहाँ आप ज़मीन दबा रहे हैं, वहाँ जब कब्र दबाएगी तब समझ में आएगा। हुकूकुन नास कभी भी पामाल मत होने दीजिएगा, इसलिए हुकूकुन नास जो अगर पामाल करिएगा उस वक्त तक माफ नहीं किए जाइएगा जब तक जिसका हक मारा गया है वो माफ ना कर दे, जब तक जिसको हमने गाली दी है वो ना माफ कर दे, जब तक जिसके साथ हमने ज़बान दराजी की है वो ना माफ कर दे, जब तक हमने जिसका दिल दुखाया है वो ना माफ कर दे। अब बताएं, ये इंसानों के लिए है, हमने आपका दिल दुखाया, आपने माफ नहीं किया, हम माफ नहीं किए जाएंगे। हमने आपका पैसा वास कर लिया, आप माफ नहीं करिएगा, हम माफ नहीं किए जाएंगे। हमने आपकी दिल शक्नी की, आप माफ नहीं किएगा तो हम माफ नहीं किए जाएंगे। जब इंसानों का ये आलम है तो बताएं दुनिया में अकड़ से रहने वालों शहजादियों कौनैन के बारे में क्या ख्याल है। वो तो कायनात की मलिका है, वो मासूमा है, अब उनकी दिल आजारी हो गई हो, वो किसी से अगर नाराज हो गई हो तो दुनिया लाख उनको सलाम करती रहे, शहजादी माफ करने वाली नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कोशिश कीजिए। आज का कुरान इसलिए चुना कि हो सकता है अगर जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, अगर दुनिया में ना रहे तो हमारा सलाम आखिर है आपके लिए। खुदा का शुक्र है कि उसने इस जगह पे हमें इस लायक समझा कि हमें शबीह मिंबर रसूल के आने का तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि बहुत बड़ी सआदत होती है मिंबर पर आना। मिंबर के नीचे बोल देना आसान होता है, मिंबर पर आने के बाद सारे लफ्ज़ की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, बिलखुसूस हुज़ूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। हर एक चीज़ का हिसाब होना हमसे ज़्यादा होने वाला है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, उलमा की जिम्मेदारी बहुत है, इसीलिए वो हर वक्त कोशा रहते हैं। खुदा आप लोगों को नजफ़ की ज़ियारत नसीब फरमाए, कभी जाए सिस्तानी साहब से मुलाकात करें, यकीन मानिए उनका चेहरा देखते ही आंसू बहने लगेंगे। लोग कहते हैं कि इतना नूरानी चेहरा है। जब एक आलिम की ये आलम है कि उनको देखते ही इंसान वो देता है फ़र्क मोहब्बत में, जब इमाम की ज़ियारत होगी तो क्या बताइए, तो जगह खुदा की जब ज़ियारत होगी। एक वक्त आया हुआ था अमेरिका से, कहीं से आया हुआ था, उसने कोशिश की देखिए जल्दी इजाज़त नहीं मिली, इसलिए कि आलम दौरान उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा था। कुछ साल पहले हमने सुना था कि खामनाई साहब के बेटे ने उनसे कहा था बाबा हमें एक साइकिल चाहिए। उस वक्त ईरान में साइकिल 800 रुपये की थी, तो उनका अल्लाह अकबर, अगर वो एक ज़बान दिला देते तो कायनात में रहने वाले इतना उनकी दौलत दे देते कि उन्हें साइकिल क्या दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत न होती। लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि देखो पहले बैठ कर चाहने वाला किसी के माल पे हक़ का तसल्लुफ़ नहीं रखता है सिवाय अपने माल के। हम ये समझते हैं ना कि आदमी के पास पैसा पहुँचा देंगे उनका पेट भर देंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बोलने से पहले सोचिए आप बोल क्या रहे हैं,
آپ بول کس کو رہے ہیں؟ آپ اس کو بول رہے ہیں جن کو امام نے اپنا بھائی کہا ہو. آیت اللہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو امام نے بھائی کہا ہے. آیت اللہ شیخ صدوق علیہ رحمہ امام کی دعا سے پیدا ہوئی. معمولی بات ہے ایسے آدمی کو ہمارے درمیان رہنا اور چلے جانا. آیت اللہ کا کوئی عزت معرفت کی منزل پہ فائز ہے. بغیر چہرہ دیکھیں نصیب بتا دوں سنا ہے ان کے بارے میں کہ اگر وہ مغرب کی نماز ایران میں پڑھتے تھے تو عشاء کی نماز زمین سمجھ جاتی ہے. ایسے ایسے عالم گزرے اس دور میں بھی ہیں ایسے. اور یقین ہے ہمیں ہر روز امام آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. ہر روز امام آیت اللہ خانہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بہت بلند مرتبے میں فائز ہیں. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کوشش کریں تب جا کے ہم بہترین آدمی بنیں. ویسا بننے کی سوچیں گے تب کہیں جا کے بنیں گے. کبھی بھی ہوپلیس نہ ہوا کریے. مایوس کبھی مت ہوئیے. اس لیے کہ شریعت میں مایوسی کی جگہ ہی نہیں ہے. مایوسی کفر ہے. اور اپنے حال کبھی کسی سے نہ بتائیے گا. خاص طور سے غربت کا عالم کسی سے ذکر نہ کیجیے گا. اس لیے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جب بھی انسان اپنی پریشانی دوسرے سے بتاتا ہے تو گویا وہ خدا کی رزق کی توہین کرتا ہے. خدا دے رہا ہے, وہ جانتا ہے کیسے دینا ہے, وہ جانتا ہے تمہیں کیسے پالنا ہے. تو ایک وقت آیا ہوا تھا بس اپنے مسائل کے لیے. اس نے اجازت مانگی, اجازت نہیں. اس نے کہلوایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں شیعہ حضرات آ رہے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. آپ اجازت دے رہے ہیں, ہم ملنے آ رہے ہیں تو کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے پیغام بھجوایا, جا کے کہہ دو تم مخالف ازا مخالف شریعت ہو. یہ جو چاہنے والے امام کیا آ رہے ہیں یہ محافظ ازا محافظ شریعت. اور معلوم ہوا کہ حیثیت انسان کیا ہے جو بھی محبت اہل بیت کے رکھ لے. عالم دورہ ان سے ملاقات کرتی ہے. آئیے کبھی نجف سے کربلا عالم جوتے صاف کرتے ہوئے ملتے ہیں. ساحرین آئیے کبھی نجف سے کربلا, آپ کو مل جائیں گے ایسے عالم دین جو بیٹھ کے کسی کے کپڑے سے لیں. آج ہمارے سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے تو ان سے اچھا کوئی نہیں. آئیے دیکھیے مثال دے رہے ہیں کہ تم کتنے بھی بڑے عالم ہو جاؤ دنیا والوں کے اللہ میں تبھی میرے پیر کے ہمیشہ فخر ہو. وہ بتا رہے ہیں کہ ازادار کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. عالم دین جلدی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے. عالم دین کسی کا جوتا بھی سل رہے تھے اور ساتھ ساتھ نفع بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب وہاں پیر کے جوتے صاف کرتے ہیں تو پھر بوسہ بھی ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ احترام کہاں ملنے والا ہمیں جو ہمیں کربلا والے سکھا دے کہ ازاداروں کا احترام کیسے کرنا چاہیے. اب آپ اپنے احترام کا اندازہ, اپنی حیثیت کا اندازہ ایسے ہی لگائیے جو وہ امام مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں وہاں جہاں پر ازاداروں کے پیچھے نہیں کہیں رسول بیٹھے ہوئے 11 محرم گزر گئے. رسول پریشان, شہزادی کو میں پریشان. جب امام آئے تھے وقت رخصت کے لیے کیا عالم نہ جانے بیویوں میں کیسے رہ سکتی ہے, نہ جانے شہزادی سکینہ میں کیسے رہ سکتی ہے. حسین جب کے چلے بعد نہ تھا کوئی جو تھا میں رکھا سکینہ جھاڑ رہی تھی نبا کے دامن. تصور کیجیے کہ کیسے جناب سکینہ نے رخصت کیا ہوگا. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. خدا آپ لوگوں کو ہر مصیبت و آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. عزاداران امام مسلم کربلا جب امام کی شہادت واقع ہو گئی ہے, آپ خود بتائیں 70 قدم کے فاصلے پہ امام کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا, بہن کھڑی کی. اللہ اکبر, کیا کسی بہن میں وہ تاب ہے کہ اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ.
تو شہزادی نے جملہ کہا تھا، میرے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھیا قتل کیا جا رہا ہے۔ امام نے اشارے سے کہا تھا، بہن خیمے میں چلے جائیں، حضرت حسین زندہ ہیں۔ ابھی شہزادی در خیمہ پہ ہی پہنچی تھی، زمین کربلا کو زلزلہ لگا، فرات کا پانی لہجے اچھلنے لگا۔ حاطف غیبی نے ندا دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مار دیے گئے۔ عزادارو روایت بتاتی ہے کہ 40 سال تک امام سجاد روئے ہیں، اور جب بھی امام کے سامنے کھانا آتا تھا امام ایک جملہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو بھوکا مارا گیا ہے۔ جب بھی پانی آتا تھا گریا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو پانی نہیں دیا گیا ہے۔ ارے ہمارے یہاں دستور ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ رسول کی اولاد کو قتل کر رہے ہیں اور پانی نہیں دے رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو 11 محرم آئی ہے، فوجی اشکیا آگے بڑھی ہیں، سب کو اسیر کیا جا رہا ہے، رسیوں میں باندھا جا رہا ہے۔ آپ تصور کر کے بتائیں 12 گلے ہوں ایک ساتھ اور سب قامت میں بلند ہوں اور سب کے سب ایک ہی رسی میں سب کے گلے باندھے جائے، کسی کے بازو باندھے جائے، اسی جگہ پہ کوئی 4 سال کی بچی کو پکڑا جائے، تو آپ بتائیں، آپ خود تصور کریں جب بڑی سائز سے کوئی بڑی چیزیں باندھی جاتی ہیں، چھوٹی چیزیں باندھی جاتی ہیں، آگے کا جملہ ہم نہیں بولیں گے، آپ خود تصور کر لیں کہ چھوٹی چیز جب باندھی جائے گی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ جب بیویاں چلتی تھی جناب سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا رسا جاتا تھا، آواز دیتی تھی، چچا پاس دیکھ رہے ہیں کیسا ستم ہو رہا ہے، آواز دیتی تھی، بھیا یہ کوئی مدد کو نہ آئیے گا، اے محمد کیا ہماری مدد کو نہ آئیے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ کو پتا ہے جب ہمارے یہاں سے کوئی گزر جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں گزرنے والے سے جو بھی منسوخ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہٹا لی جائے، تاکہ جن کے ہاں غم ہے وہ غم تازہ نہ ہونے پائے۔ کیا جب زمانے کا دستور تھا کربلا میں اسیروں کو وہاں سے گزارا جا رہا ہے جہاں پہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں مولا سجاد کیسے نہ گریا کرے، شہزادی کونین اب شہزادی زینب اپنے آپ کو کیسے نہ گرائے، جب اپنے آپ کو ناکے سے گرا لیا ہے، امام حسین کے جنازے کے قریب آ کے کہتی ہے، آندافی کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ آپ بتائیں لاش امام کی کیا حالت نہیں ہوگی کہ شہزادی بھی سوال کر رہی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں یہ قافلہ جب راہ کوفہ کی طرف بڑھا ہے تو چلتے چلتے یہ قافلہ رک گیا ہے، ایک مرتبہ شبر آگے بڑھا ہے، مولا سجاد سے آ کے کہتا ہے، اے سجاد اپنے بابا سے پوچھئے ان کا سر آگے کیوں نہیں بڑھا ہے، ورنہ ہم تعزیانے سے آپ کو پریشان کر دیں گے۔ ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، بابا کے پاس آ کے کہتے، اے بابا اب زیادہ ستم حسین کی تاب نہیں ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ سر امام سے آواز آئی ہے، بیٹا ہم آگے کیسے بڑھیں، سینے میں سونے والی سکینہ راہ میں گر گئی ہے۔ جناب زینب اس راستے پہ بڑی جان سے قافلہ آیا تھا، کچھ دور پہنچی کیا دیکھا، شہزادی سکینہ ایک بیوی کی آغوش میں بہت سکون سے سو رہی ہے۔ شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا، اے بیوی آپ کا بہت شکریہ، ابھی تک جس نے بھی ان کے اس سے قریب ہوا ہے کسی نے تماچے مارے ہیں، کسی نے تعزیانے مارے ہیں، اے بیوی آپ کا بہت شکریہ۔ اے بیوی سکینہ آپ کی آغوش میں آرام سے سو رہی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ارے بیوی نے ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا، اے زینب اپنی دکھیاری ماں کو نہیں پہچانا، ہم آپ کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ارے شہزادی ماں سے لپٹ گئی، اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب بھیا شہید ہو رہے تھے؟ اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب بھیا کا سر لوگے لہجہ پہ بلند کیا جا رہا تھا؟ اے اماں ہمارا گھر برباد ہو گیا۔